Okay, welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, I am Durgesh Kumar Pandey and welcome all of you. I am taking a chapter in class 12th. The name of the chapter is Challenges of National Building. Class, you know, India was got the independence on 15 August 1947, and at the midnight of 14 to 15 August 1947, our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru was addressing the Constituent Assembly of India on midnight, and he was gave his famous speech, Test with the Destiny. And all of you already study in the class 9 this speech, what the Pandit Jawaharlal Nehru want to explain with this speech. Class, you know, India was got the independent, and independence come with the partition. Peoples suffer. Peoples are moving from one part to another countries. The Hindus and Sikhs were living in the Pakistan, were now come in the India, and the Muslims who are migrated from India to Pakistan. Class, you know, you already in this book a story, a movie, Garm Hawa was mentioned in the NCERT book. क्या आपने ये मूवी देखा स्टूडेंट्स, गरम हवा? All of you please watch this movie Garam Hawa, because in this movie the directors were trying to express the difficulty of a common people who are living in India. हमारे इंडिया में रहने वाले एक जो मुसलमान जो के साथ भी क्या समस्याएं आ सकती हैं. ही वॉज वेरी हिज पिक्चराइजेशन वॉज वेरी गुड. ओके क्लास, कि एक मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह गया, रुक गया, उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई. कोई भी उसको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था, उसका बिजनेस चौपट हो गया, लोग मुसलमानों पे भरोसा नहीं करने लगे, करते थे उस समय, और उनको कोई लोन नहीं देता था, और इस तरह से उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया, उनकी हवेलियाँ उनके हाथ से निकल गई. ठीक है, तो चीज़ें बदल गई. तो इसमें गर्म हवा में आप देखोगे तो सिमिलरली क्लास ऐसी और भी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म हैं जिनके थ्रू हम थोड़ा सच्चाई को विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं. आपको एक और मैं मूवी बनाता हूँ लाइक गदर. इन दिस पिक्चर इन द स्टार्टिंग वी आर लुकिंग कि हाउ द पीपल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द माइग्रेशंस. ओके, भारत के लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भारत में जा रहे हैं, हिंदूज मुस्लिम को आना जाना जो लगा है. तो ड्यूरिंग कॉम्युनल वायलेंस क्या होता है उनके साथ, लोगों के साथ, लोगों की फैमिलियाँ कैसे बिखर जाती हैं. तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. यू लुक द डिफ़िकल्टीज ऑफ ड्यूरिंग द independence. Azadi, independence come with the partition, and partition after the partition of India, India got independent, and after the independent India faced basically three types of challenges. First challenges was to save a nation, second challenges was to establish a democracy, and third challenges was to ensure the development and well-being of entire society. Class, I want to say how we save a nation means class after the independent, you know, India have a more than 565 princely state, and when Britishers were
left our country. It means the lapse of paramountcy of Britishers on this princely states. And ये जो princely states थे, they have three options कि remain independent और merge with India and Pakistan. तो उनके पास ऑप्शन था, बट जो थर्ड ऑप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, टेक्निकली पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो नाउ दिस थिंग वाज क्रिएट अ प्रॉब्लम इन इंडिया कि अब भारत इन 565 प्रिंसली स्टेट को कैसे अपने साथ जोड़े, बिकॉज दे हैव अनदर ऑप्शन टू ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. तो वी हैव अ चैलेंज कि हम इंडिया में कितने रियासतों को, कितने प्रिंसली स्टेट को ऐड कर पाते हैं. और यू नो आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स एंड होम मिनिस्टर Sardar Vallabhbhai Patel was taking these challenges of merging the princely state in India. And so the first challenges was, after the independence, was to shape a nation. How we merge this princely state into one nation. Class, our Sardar Vallabhbhai Patel was using diplomacy. कुछ राजाओं को समझा बुझा करके कन्विंस कर लिया कि ज्वाइन टू इंडिया. कुछ को थोड़ा सा लालच देना पड़ा ऑटोनोमसी का, कुछ को थोड़ा सा डराना पड़ा कि जनता हमारे साथ है, प्लेबिसाइट करा देंगे, फिर आपका सब खत्म हो जाएगा. एंड लास्टली जो नहीं माने, वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी को रिकमेंड किया. तो इस तरह से हमारा इंडिया का जो एक नेशन के रूप में आप जो देख रहे हो, दिस प्रोसेस वाज वेरी टफ. एंड इसके लिए बहुत ही जो है डिप्लोमेसी की ज़रूरत थी. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल विद BP मेनन भी उनके साथ थे. ही वाज अपना पेश दिया कि कैसे हमारे इंडिया का इंटीग्रेशन हो सके. क्लास, the second challenges was to establish a democracy. And India after the independence, we are going to make of our Indian constitution, and our maker of our Indian constitution take 2 years, 11 months and 18 days, and they make the constitution of India made by a constituent assembly. And the member of the constituent assembly were not only a knowledgeable advocate, but also they were the public representative on that time. So India का constitution बना, and we are adopting the path of democracy. and democracy में हमने representative democracy को adopt किया. Plus democracy are basically two types. One is direct democracy, another is indirect democracy. Direct democracy क्या होता है? Like पब्लिक डायरेक्ट अपने रूलर को चुनती है, और पब्लिक डायरेक्ट जो भी फैसले होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपका आज हमारी ग्राम पंचायत, लोकल गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है. एंड स्विट्ज़रलैंड इज़ अ कंट्री ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, थोड़ा बहुत वहाँ भी है. लेकिन नाउ आजकल जो है राज्य काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, स्टेट्स, एंड देयर पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है. तो in such a situation, direct democracy is not possible. That is why after the independence, India was adopted the representative democracy. It means peoples first choose their representative by election, and these representative in the second round, these representative elect their leader who was going to make a government, like prime minister and council of minister. Okay, so after the independence, we are following the path of representative democracy. Means the rulers are elected by the people, and when the peoples elect their MPs, these MPs were again elect their ruler, elect among one who are going to make the government. So we are following the
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स हमारे कंट्री में जो रूलिंग होगा वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होगा इन क्लास। एंड नेक्स्ट थिंग सेकेंड चैलेंज में आपके डेमोक्रेसी में ही आपका है कि वी आर फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो क्लास व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर आर टू टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव रियल एंड नॉमिनल। जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड। तो हमारे यहाँ दो टाइप के ऐसे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इसमें एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क अगेंस्ट द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का जो टेन्योर है अनसर्टेन होता है, कभी भी नो कॉन्फिडेंस आने पर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। एंड एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर होते हैं वो लेजिस्लेचर से ही चुन के आते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच representing the feature of a parliamentary form of government. Class third challenges was to establish to ensure the development and well-being of entire society. This was the third challenges to ensure the development and well-being of entire society. Means this is the third challenges कि how we develop of our economy, you know द पास्ट ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का पास्ट कैसा रहा है। ब्रिटिशर्स वे डिस्ट्रॉय और इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया 16th सेंचुरी में सोने की चिड़िया कही जाती थी। और ऐसे रिच और प्रॉस्परस कंट्री को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया और हमारी इकोनॉमी को रूइन कर दिया। आपने देखा ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड्स दे डिस्ट्रॉय आवर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, our agriculture by forcing इंडिको प्लांटेशन, ठीक है, और कॉमर्शियल क्रॉपिंग कराया हमसे ज़बरदस्ती। तो ये जो तरीके थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर, हमारी वेवर्स के बिज़नेस को डिस्ट्रॉय कर दिया ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ ब्रिटेन के प्रॉफिट के लिए ऐसा किया। ब्रिटेन में आपको मालूम है सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता एंड दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट। और इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए कि हमारे जो स्मॉल स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है वो तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए और हमारे इंडियन मार्केट में जो है ब्रिटिशर्स के सामान बिके और प्रॉफिट ब्रिटिशर्स कमाए। तो जो थर्ड चैलेंजेस क्या था कि हम अपने कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो हमने ये SSR को देख करके जो है सोवियत मॉडल अपनाया, पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान को हमने अडॉप्ट किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान बना करके हमने जो है डेवलपमेंट के लिए जो है अपने रास्ते बनाए, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर जो था आपका जो है डेवलपमेंट का वो बेसिकली एग्रीकल्चर में फोकस था। सेकेंड 5 ईयर का प्लान जो है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस था। तो हमने जो है डेवलपमेंट, अपने कंट्री के डेवलपमेंट को इंश्योर करना हमारे सामने चुनौती थी। और वेलबींग ऑफ इंटायर सोसाइटी, हमें केवल डेवलपमेंट ही नहीं करना था, हमारे इंडिया में रहने वाले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनका जो है उनका भी भला करना था, जो सैकड़ों सालों से अनटचेबिलिटी या सती प्रथा जैसी चीज़ों से महिलाएं त्रस्त थी, उनसे उनको मुक्त कराना था। तो वी आर वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी, पूरे सोसाइटी का वेल बीइंग अच्छा करने के लिए जो है हमारा ये पास ये जिम्मेदारी थी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल जो कास्ट सिस्टम की वजह से जिनकी स्थिति ख़राब है, ठीक है, जो जंगलों में हज़ारों साल से रहते हैं शेड्यूल ट्राइबल्स, उनकी इकनॉमी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारा ये लक्ष्य था कि हम उसका भी इकनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें, कैसे हम जो है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं जैसे ट्राइबल्स कम्युनिटी, बनवासी, बंजारे, उनके वेलफेयर को कैसे श्योर करें। इसके अलावा हमारे सामने चैलेंजेस ये था कि हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट करें, ठीक है। हमें केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स का ही डेवलपमेंट नहीं करना था, हमें सोसाइटी के हर तबके का डेवलपमेंट इंश्योर करना था, उनको
आगे बढ़ाने के रास्ते बताने थे। ठीक है क्लास। I want to take the another topic like what is instruments of SSN. Class, after the independence, India are the group of many princely states और इंडियन गवर्नमेंट ने इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेसन साइन करवाए। विलय पत्र था ये कि जो प्रिंसली स्टेट इंडिया में ऐड करना चाहते थे उन्हें ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेसन साइन करना पड़ता था राजाओं नवाबों को, तब वो टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती थी। ठीक है क्लास। In this chapter we are also going to study about what are the problems in the process of merging of in India of this princely state. Most of the states were ready to join the India after the small negotiation बातचीत हुई and Sardar Vallabhbhai Patel was successfully convinced them to merge in India. कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर थोड़ा सा उनको ऑटोनोमसी या फिर डिफरेंस उनको रिलैक्सेशन की बात देकर के उनको इंडिया का पार्ट बनाया गया, और कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पर थोड़ा जाकर डराना पड़ा कि पब्लिक हमारे साथ है, एंड द लास्ट जो नहीं माना उसके साथ इंडियन आर्मी है यूज़ करने के। ठीक है, तो फिर भी ये जो 4 प्रिंसली स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, इन लोगों ने दिक्कतें पैदा की, इन राजाओं ने यहाँ के राजाओं नवाबों ने दिक्कतें पैदा की। जैसे जूनागढ़ है आपका, जूनागढ़ गुजरात में था, एंड जूनागढ़ में जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू थी, लेकिन जो इसका रूलर था वह पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। पाकिस्तान उनको रियायतें दे रही थी, छूट दे रही थी, रिलैक्सेशन दे रही थी, और राजा महाराजा लग्जरी लाइफ जीने के आदी होती थे, तो लग्जरी लाइफ उनको जीना था। इसलिए जो जूनागढ़ का रूलर था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था कि उसको ऐशो आराम मिलेंगे। तो हमारे जूनागढ़ में क्या दिक्कतें थी कि लोग जो है इंडिया के साथ आना चाहते थे, और अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन आर्मी भेजनी पड़ी। हालांकि आर्मी ने कुछ किया नहीं, केवल आर्मी वहाँ तक गई केवल, और वहाँ पर प्लेबिसाइड कराया गया, और इंडिया वहाँ के जूनागढ़ के लोगों ने इंडिया के फेवर में आने के लिए वोटिंग कर दिया। और नाउ द प्रॉब्लम ऑफ जूनागढ़ वाज सॉल्व बाय अ प्लेबिसाइड ऑर्गेनाइज हियर। ओके, फिर नेक्स्ट जो समस्या खड़ा करने वाले कंट्रीज थे हैदराबाद। Class, next problem is the problem of Hyderabad. The Hyderabad was a big princely state during the colonial period. Class, in present time, we are looking Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. So most of the today's part of Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh was on that time during the independence. These are the parts of Hyderabad. Okay, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के जो प्रेजेंट पार्ट है वो कभी हैदराबाद रियासत के पार्ट्स में आते थे, एंड हैदराबाद वाज पूरा इंडिया से घिरा हुआ था टोटली, एंड द निज़ाम was wanted to remain independent as a independent country. Okay, but our Indian government will try to negotiate कि भाई टेक्निकली ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रहे। इंडिया पाकिस्तान के साथ आपको एक को चुनना था, तो इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू कन्विंस द हैदराबाद निज़ाम। The Nizam means the richest person of the world. Okay, and इनको समझाने की कोशिश की गई, but after
एक ईयर के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड हैदराबाद के निज़ाम के बीच 1 ईयर के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड the peasants were living in the Telangana region in the Hyderabad states were organized a revolt against the ruler because the Nizam of Hyderabad was a very suppressive ruler. He was exploiting peoples. Basically, the paramilitary forces of Nawab like Rajakars were attack on the non-Muslims. Peasants were organized a revolt against the Nizam rule. Similarly, the political party like a Congress, Communist and other political party also raised their voices against the government and their policy. And the class ultimately, when the paramilitary forces of Nizam was attacked on the non-Muslims and their violence was basically focused on the non-Muslims, they were using every possible measures against the non-Muslims, and ultimately the Sardar Vallabhbhai Patel was sending an Indian army for the protection of peoples, and after a war of few days Nizam was surrendered against the Indian government, and now the merging of Hyderabad state with India was completed. Class, the next problem, Kashmir, was a very crucial problem. It will discuss in another chapter. First, you look the Manipur. Before the independence, Indian government was trying to convince the Raja Bodh Charan of Manipur, and he was trying to sign the instruments of accession to Indian government on the condition of internal autonomy. And Manipur was the first state which was organized the election in 1948, and by this election elected legislative assembly was established in Manipur. So Manipur was the first state which was organized the election. The king was organized the election under the pressure of people, and elected legislative assembly was set up in the Manipur. And again the Indian government was trying to convince the Manipur now become the constitutional monarchy, and Indian government try again to convince the Manipur. And lastly, the Maharaja of Manipur was signed the merger act with India without consulting the popularly elected legislative assembly. And in the legislative assembly, Congress was want to merger of Manipur in India, but some other political party was not ready. They have a soft differences on the issue of merging in India of Manipur. So Raja Bodh Charan Singh से बात किया गया, and Indian government was got the success sign राजा बोध चरण को इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में जोड़ने के लिए, साइन कराने के लिए कामयाबी मिल गई. नाउ मणिपुर वॉज बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, और उसका मणिपुर का मर्जर पूरा हो गया. कश्मीर की प्रॉब्लम बेटा लगातार आफ्टर द इंडिपेंडेंट राजा हरी सिंह भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, बट जब पाकिस्तान की ट्राइबल्स कम्युनिटी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया राजा हरी सिंह के ऊपर, तो फिर हरी सिंह को इंडियन गवर्नमेंट के पास आना पड़ा अपने बचाव के लिए, और फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्ट्स पे साइन करके इंडिया को पार्ट बन गया. फिर इंडियन आर्मी गई और रिलैक्सेशन उनको दिया गया, और कोशिश किया गया कि मैक्सिमम एरिया खाली करा लिया जाए, बट कुछ पार्ट्स अभी खाली नहीं हो पाए थे. तो तब तक ये मामला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के कहने पर यूएनओ में उठाया, और इस तरह से यूएनओ के कहने पर मामला वहीं रुक गया, सीज़ फायर हो गया. और
आज भी जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास पीओके के रूप में है और इंडिया के पास इंडिया वाला हिस्सा है। एंड नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर was left and it was not completed, पूरा नहीं हो पाया।